Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing part 2 of chapter 140 of Rook's dermatology, that is cutaneous lymphoma. And our today's topics will be primary cutaneous cd30 positive lymphoproliferative disorders and primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma. But before digging into our topic, first let us refresh our knowledge of cd30 cells. CD30 cells are actually proteins and they belong to tumor necrosis factor superfamily. These tumor necrosis factor, it is a vast family and it has different functions like apoptosis, proliferation, and morphogenesis. And here you can see that CD30 lies in apoptotic portion of this family. This CD30 cells, they originally were described as a marker of Reed-Steinberg cells in Hodgkin lymphoma, but they can be also present on virus-infected lymphomas, neoplasms of lymphoid origin, and a subset of activated T cells which produce Th2 type cytokines. And the ligand for these CD30 cells, they are present on activated T cells, resting B cells, granulocytes, medulla of thymus, and various leukemia cells. So now moving towards the topic, primary cutaneous CD30 positive lymphoproliferative disorders. This group is the second largest group of cutaneous T-cell lymphomas, and it comprises the 30% of all primary cutaneous lymphomas. इस डिसऑर्डर में हमारे पास दो डिजीज को हम डिस्कस करेंगे, एक लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस एंड द अदर वन इज CD30 पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा. और ये डिसऑर्डर जो है इसमें हम एक स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस को देखेंगे. जो लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस एंड CD30 पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमास है, they have overlapping clinical and histopathological features which form a spectrum of the disease. तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि there is no distinctive definite distinctive feature between cutaneous anaplastic and lymphomatoid papulosis. मतलब इसमें कोई आप डिस्टिंक्शन नहीं बना सकते कि वेदर इट इज़ अ लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस और अ CD30 पॉजिटिव एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा. ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम लॉन्ग टर्म क्लिनिकल फॉलोअप विल हेल्प टू कैटेगराइज दीज कंडीशंस. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस को बनाते हैं. ठीक है, in the skin, CD30 proliferative disorders are basically derived from T cells. ठीक है, और जो नोडल CD30 पॉजिटिव लिम्फोमास है वो B, T और नल सेल से डिराइव्ड है. ठीक है, और जो प्राइमरी क्यूटेनियस CD30 पॉजिटिव डिसऑर्डर्स है, they don't have any systemic or nodal involvement, which is a good sign and which shows a good prognosis. ठीक है, on the other hand जो CD30 पॉजिटिव लिम्फोमास जो कि lymph node से arise होते हैं, they show poor prognosis, and these nodal CD34 lymphomas they are associated with a specific T25 translocation. ठीक है, और ये जो है प्राइमरी क्यूटेनियस CD30 लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में नहीं होते, ये सिर्फ नोडल वाले कंडीशंस में होते हैं. कुछ मोलिकुलर स्टडीज भी की गई थी जिसमें रिलेशन ऑफ एब्स्टेन बार जीनोम
एंड CD30 इन्फिल्ट्रेट्स इन हॉजकिन लिम्फोमा का बताया था। तो CD30 इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर TNF अल्फा लाइक साइटोकाइंस, ठीक है। और इसी वजह से फिर CD30 एक्सप्रेशन कैन बी अप रेगुलेटेड बाय एप्स्टेन बार वायरस। तो ये रिलेशन होता है कि अगर एप्स्टेन बार वायरस किसी कंडीशन में हो तो वो CD30 की एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट कर देता है। अच्छा, US क्यूटेनियस लिम्फोमा कंसोर्टियम ने एक गाइडलाइन बनाया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी क्यूटेनियस CD30 पॉजिटिव लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। उसमें बस एक ट्रीटमेंट एल्गोरिथम बताया था जिसमें लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस का फर्स्ट लाइन में एक्सपेक्टेंट थेरेपी मैनेजमेंट हो सकता है। एक्सपेक्टेंट मीन्स कि ये जो है सेल्फ हीलिंग कंडीशन है और it will resolve by its own. Second, skin directed therapy, which includes topical therapy, phototherapy, and radiotherapy. Second line consists of methotrexate and interferon alpha. Anaplastic large cell lymphoma में first line of treatment is surgical excision if there is solitary lesion, radiotherapy, and methotrexate. Second line comprises of CHOP therapy, which includes cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone. An experimental treatment includes uh, brentuximab. Acha. So the first condition is lymphomatoid papillosis, which is defined as a chronic, self-healing, rhythmical, paradoxical papular eruption. Condition chronic है, self-healing है, rhythmical means it is recurrent, which comes and go. Paradoxical, which means it is unpredictable. Papular eruption, which is histologically malignant but clinically benign. पैथोफिजियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मम 1 एंड ट्रेफ 1 की एक्सप्रेशन होती है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंट फंक्शन है ये अभी तक पता नहीं है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोनल PCR जीन रीअरेंजमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये रीअरेंजमेंट जो है ये सारी कंडीशन में जो आज हम पढ़ेंगे उनमें सब में ये होता है, क्योंकि ये इस डिजीज़ की मोनोक्लोनल कंडीशन को शो करता है, मीन्स दे आर derived from same lineage, ठीक है। तो क्लोनल TCR जीन रीअरेंजमेंट इस कंडीशन में होगी। अच्छा, एक पॉइंट जो बताना भूल गई कि ये कंडीशन सेल्फ हीलिंग है, ठीक है। तब सेल्फ हीलिंग का एक और पॉइंट बताया गया है कि जब CD30 सेल्स की लाइगेंड के साथ इंटरेक्शन होती है तो हमने ये पढ़ा था कि CD30 लाई करता है एपोप्टोटिक पार्ट ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की फैमिली में, ठीक है। तो जब लाइगेंड की CD30 के साथ इंटरेक्शन होती है तो एपोप्टोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, which results in regression of skin lesions. So it plays a role in it being self healing condition. हिस्टोपैथोलॉजी पे अगर हम देखें तो देयर इज लेक ऑफ एपिडर्मोट्रोपिज्म and portreal microabscesses which are features of mycosis fungoides. Dermis में हमें mixed infiltrates मिलेंगे which are basically atypical lymphocytes with large nuclei. Abnormal mitosis मिलेगी, eosinophils, neutrophils भी मिलेंगी, extravasated red cells भी मिलेंगी with large histiocytic cells.
एंड साइटोलॉजिकल एटीपिया भी हमें मिलेगी. एपिडर्मिस कैन शो अल्सरेशन. ठीक है. On the basis of histology, lymphomatoid papulosis is divided into 4 subgroups: A, B, C and D. जो subgroup A and C है वो kind of similar है हमारे पास because they contain large cd30 positive cells. And type B में subgroup B में smaller cells मिलेंगे. जो subgroup A है इसमें हमारे पास large atypical cd30 positive cells मिलेंगे which are similar with those in Hodgkin disease. Means kind of हम कह सकते हैं कि रीड स्टैनबर्ग लाइक सेल्स मिलेंगे. अब इस पिक्चर में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास रीड स्टैनबर्ग लाइक सेल्स मिल रहे हैं. ठीक है. रीड स्टैनबर्ग सेल्स बेसिकली है क्या, वो लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड और बाइलोब न्यूक्लियस विद प्रोमिनेंट eosinophilic inclusion like nuclei को कहते हैं. ठीक है. और ये होता है हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा में. तो सब ग्रुप ए में हमारे पास रीड स्टैनबर्ग लाइक सेल्स मिलेंगे. सब ग्रुप बी में स्मॉलर एटिपिकल टी लिम्फोसाइट्स विद कन्वोल्यूटेड न्यूक्लियाई मिलेंगे. और दिस कंडीशन इज सिमिलर विद दोज इन एमएफ माइकोसिस फंगोइडिस. इस पिक्चर में आप लोग देखें तो जो सेल्स हमें नजर आ रहे हैं वो काइंड ऑफ एटिपिकल cerebriform cells means convoluted type cells मिलेंगे. जो ग्रुप सी है इसमें भी हमने बोला था कि लार्ज क्लस्टर ऑफ CD30 पॉजिटिव सेल्स मिलेंगे और इट इज सजेस्टिव ऑफ एनाप्लास्टिक CD30 पॉजिटिव लार्ज सेल लिम्फोमा. जो टाइप डी है, सब ग्रुप डी है, उसमें एटिपिकल CD30 पॉजिटिव लिम्फोइड सेल्स एक्सप्रेस CD8 विद साइटोटॉक्सिक फिनोटाइप. ठीक है. ये हमारे पास 4 सब ग्रुप्स हैं लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस के, जो कि हम हिस्टोपैथोलॉजी पे देखेंगे. इस क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो इट इज़ कॉमन इन एडल्ट लाइफ, प्रेजेंट ऑन ट्रंक as well as on limbs. It presents as recurrent crops of papular or papulonecrotic or nodular lesions. The lesions can grow rapidly over a few days. अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस भी मिल सकती है हमें. हीलिंग भी होगी which occurs slowly over 3 to 12 weeks with atrophic circular or varioliform scars. ठीक है. रिकरेंस भी कॉमन है इसमें, एवरी फ्यू मंथ्स के अंदर रिकरेंस हो जाता है. अब कुछ कंडीशंस में ये भी देखा गया है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा भी उन पेशेंट्स में देखे गए. ठीक है. मींस एसोसिएशन है इसकी हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ माइकोसिस फंगोइडिस कैन आल्सो अकर. डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में अगर बात करें तो मैंने शुरू में बोला था कि ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है जिसमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज नेसेसरी. ठीक है. क्योंकि द डिजीज में प्रोग्रेस टू अ मोर एग्रेसिव लिम्फोमा, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज नेसेसरी. बट progression to aggressive lymphoma occurs in less than 5% of the cases. Uncommon है but हो जाता है. Those conditions which are associated with lymphomatoid papulosis appear to have excellent prognosis. ठीक है. तब इसकी prognosis जो स्पेक्ट्रम में लाई करता है लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस के, उसकी प्रोग्नोसिस हमारे पास अच्छी है. अब इसकी क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो इट इज मोस्ट कॉमन इन एडल्ट लाइफ, प्रेजेंट ऑन ट्रंक as well as on limbs. It presents as recurrent crops of papular or papulonecrotic or nodular lesions. The lesions can grow rapidly over a few days. अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस भी मिल सकती है हमें.
और 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है हमारे पास इसमें 100%। मैनेजमेंट में मैंने बताया शुरू में कि इट्स अ सेल्फ हीलिंग कंडीशन, तो एज सच कोई ट्रीटमेंट इसके लिए अभी तक नहीं आया। लेकिन जो ट्रीटमेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, वो सिर्फ डेवलपिंग लीजन्स को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, उसकी क्लियरेंस को एक्सेलरेट कर देता है। लेकिन अगर लीजन्स डेवलप हो चुके हैं, उनमें ये टॉपिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करेंगे। तो टॉपिकल और इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स एंड टॉपिकल नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये जो है डेवलपिंग लीजन्स में काम करेंगे एंड दे में एक्सेलरेट द क्लियरेंस बट हैव लिटिल इफेक्ट ऑन वेल डेवलप्ड लीजन्स, ठीक है। इसके अलावा नैरो बैंड यूवीपी, पूवा, low dose methotrexate along with oral dapsone may play beneficial role. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइमरी क्यूटेनियस एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा। ये स्पेक्ट्रम के दूसरे साइड पे है और इट एक्सप्रेसेस द CCR3, TH2 cytokines and CCR4, which also occurs in mycosis fungoides and Sézary syndrome. There is loss of 9, E21 and 22, overexpression of AP1 proteins, and chromosomal rearrangement of interferon regulatory factor 4. हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें dense lymphocytic infiltrates मिलेंगे, consisting of large sheets of atypical cells with anaplastic morphology, means there is loss of structure and functional differentiation of the cells along with mitosis, and there is no epidermotropism, ठीक है। उसके अलावा हमें प्लियोमॉर्फिक और ब्लास्ट लाइक सेल्स मिल सकते हैं, सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया भी मिल सकती है, एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर क्लोनल TCR जीन रीअरेंजमेंट्स भी होंगे इसमें। इम्यूनोफिनोटाइप में इम्पोर्टेंट पॉइंट बस यही है कि याद रखना है कि कौन सी सेल्स पॉजिटिव मिलेंगी और कौन सी सेल्स जो है नेगेटिव होंगी हमारे पास। तो द पॉजिटिव सेल्स आर CD4, CD8, CD30 एंड CD56, ठीक है। CD8 एंड CD56 पॉजिटिव होंगे along with some cytotoxic proteins such as perforin, coenzyme B, and T cellular, intercellular, T cell intracellular antigen 1। और जो सेल्स नेगेटिव होंगे वो हैं CD2, 5, 3 and 15 along with ALK, ठीक है। ये सब नेगेटिव होंगे हमारे पास। और एक जो हाईलाइट करने वाली पॉइंट है वो ये है कि the key distinguishing feature is the presence of cohesive nodules and sheets of anaplastic cells in primary cutaneous ALCL. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इट्स अ डिजीज ऑफ एडल्ट लाइफ, present as large solitary or multiple often ulcerated nodules on the trunk. अच्छा, ये it can progress to extracutaneous sites as well in about 10% of cases, ठीक है।
इसमें दो क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं। एक जो कि प्रेजेंट करेगा हमारे पास एज लार्ज अल्सरेटिव नोड्यूल्स ऑन थाइज एंड बटक्स which show variable rates of spontaneous resolution। ठीक है, मतलब ये सेल्फ हीलिंग है और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन होती है इसमें, और इसको लेबल किया है एज रिग्रेसिंग एटिपिकल हिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएंट है, और ये जो है हमारे पास वो बॉर्डर लाइन जो शुरू में हमने डिस्कस किया था उसमें लाई करता है। ठीक है, जो बिटवीन लिम्फोमेटॉइड पेपिलोसिस और प्राइमरी क्यूटेनियस एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है एज palpable and pathologically involved regional lymph nodes at presentation, but there is no evidence of lymphoma beyond the regional draining nodes। ठीक है, मतलब जहाँ पे रीजनल लिम्फ नोड्स palpable होंगे लेकिन उसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा हमारे पास। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम सिस्टेमिक CD30 पॉजिटिव ALCL को रख सकते हैं। डिजीज प्रोग्नोसिस की बात करें तो 5 year सर्वाइवल रेट इज 90%, which shows a good prognosis of this disease. But some cases have been reported in generalized tumors, which shows 5 year survival rates which decreased to about 50%। ठीक है, मैनेजमेंट में हम एक्सीजन एंड लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, along with CHOP therapy। कीमोथेरेपी भी हम दे सकते हैं इन केसेस ऑफ वाइड स्प्रेड क्यूटेनियस डिजीज। लो डोज मिथोट्रेक्सेट भी दे सकते हैं हम। उसके अलावा रेडियोथेरेपी एंड ब्रेंटुक्सिमैब दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबक्यूटेनियस पेनिकुलाइटिस लाइक टी सेल लिम्फोमा। As the name suggests, there is involvement of adipocytes। ठीक है, और it is derived from alpha beta T cells। It is a rare cytotoxic T cell lymphoma, which represents less than 1% of all non-Hodgkin lymphomas, and it affects younger adults। It has two subsets। एक हमारे पास है अल्फा बीटा टी सेल्स, ठीक है, जो कि इंडोलेंट है, और दूसरा हमारे पास है gamma delta T cells, which shows a poor prognosis, and we will be discussing this in a while। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो देयर इज लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, एंड ऑन fish technique we can see loss of 10q 7p and 19 along with 5q and 30q gain। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी में, और हिस्टोपैथोलॉजी में देयर इज diffuse infiltrates restricted to and extending throughout the subcutis without epidermotropism। इसमें भी अभी तक epidermotropism नहीं मिलेगी हमें। ऑन द अदर हैंड जो इसका सबसेट था गेमा डेल्टा टी सेल, उसमें हमें एपिडर्मोट्रोपिज्म मिलेगी, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो इस डिजीज में है इसमें देयर इज मीडियम साइज्ड एंड ओकेजनली लार्ज pleomorphic cells, and the characteristic feature of this disease is rimming of tumor cells around adipocytes। ठीक है, मतलब ये कि एडिपोसाइट्स के अराउंड जो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक सेल्स है, प्लियोमॉर्फिक टी सेल्स है, वो अरेंज हो जाएंगे जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमें वेस्कुलर इन्वेजन मिलेगी, एंजियोसेंट्रिसिटी मिलेगी, नेक्रोसिस एंड एरिथ्रोलिम्फोफेगोसाइटोसिस भी मिलेगी।
वेसल इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली एरिथ्रोइड लिम्फोफेगोसाइटोसिस भी मिलेगी हमें। इम्यूनोफिनोटाइप में हमें जो सेल्स पॉजिटिव मिलेंगे वो है बीटा F1, cd3, cd8 एंड साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स, ये सब हमें पॉजिटिव मिलेंगे। और जो नेगेटिव सेल्स है वो है cd4, 30 एंड 56। और क्लोनल रीअरेंजमेंट हमें मिलेगी इसमें। क्लिनिकल फीचर्स में इट प्रेजेंट विथ इंडोलेंट slowly expanding subcutaneous nodules most commonly involving the limbs, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स में मोर डिफ्यूज एरिथमेटस इन ड्यूरेशन भी मिलेगी जो कि मिमिक करेगा सेलुलाइटिस को। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम सेलुलाइटिस को भी रख सकते हैं इस कंडीशन में। लिम्फ एडिनोपैथी नहीं मिलेगी हमें। सिस्टेमिक सिम्टम्स मिल सकते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हीमोफेगोसिटिक सिंड्रोम, ठीक है। जिस पेशेंट में हीमोफेगोसिटिक सिंड्रोम होंगे उनमें फिर हमें सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं मिलेंगे विच कंसिस्ट ऑफ फीवर, पैनसाइटोपिनिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। बट ये फीचर इसका जो है वो इज मोर कॉमन इन दोज विथ gamma delta T cell lymphoma which is kind of aggressive disease. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम ल्यूपस पेनिकुलाइटिस रख सकते हैं। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में 5-year सर्वाइवल रेट इज अबाउट 80% which was good prognosis. On the other hand जो gamma delta T cell lymphoma है it shows poor prognosis. ट्रीटमेंट में हम सिस्टेमिक स्टीरॉयड दे सकते हैं पेशेंट को। साइक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं। सुपरफिशियल रेडियोथेरेपी भी यूज़फुल है। इसके अलावा डेनिल्यूकिन, डिफ्टीटॉक्स, पेक्सारोटिन, रोमिडेप्सिन, ये ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं पेशेंट में। एंड इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एक्स्ट्रा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन तो हम उनमें कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। उसके अलावा हाई डोज थेरेपी एंड ऑटोलोगस और एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी दे सकते हैं पेशेंट्स में। अच्छा, जो सेकेंड पार्ट है हमारे टॉपिक का वो है प्राइमरी क्यूटेनियस पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा। इस ग्रुप में जितने भी डिजीज़ हमारे पास होंगे उसका डिफ्रेंशिएट करना माइकोसिस फंगोइडिस से बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब जो डिजीजेस इस ग्रुप में लाई करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इस मतलब ऐसे फीचर्स शो करते हैं जो कि इस ग्रुप में फिट नहीं हो सकते। तो उनके लिए एक दूसरा ग्रुप बनाया है जिसका नाम रखा उन्होंने प्राइमरी क्यूटेनियस पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। और ये वो कंडीशंस होते हैं जो शो करते हैं पुअर प्रोग्नोसिस को along with high probability of systemic involvement, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास डिजीज है इसमें वो है प्राइमरी क्यूटेनियस एग्रेसिव एपिडर्मोट्रोपिक CD8 पॉजिटिव टी सेल लिम्फोमा। अब इन डिजीजेस में जो अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब में एपिडर्मोट्रोपिज्म मिलेगी हमें, ठीक है। There is prominent epidermotropic infiltrates along with cytotoxic proteins, ठीक है। वही क्लोनल TCR जीन रीअरेंजमेंट भी मिलेगी हमें।
हिस्टोपैथोलॉजी पे मिलेगी प्रोमिनेंट एपिडर्मोट्रोपिक बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है, with nodular infiltrates of large or small to medium sized pleomorphic और ब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। अब एपिडर्मोट्रोपिज्म जैसे पता है कि लिम्फोस इन एपिडर्मिस विदाउट स्पेंजियोसिस को कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो डीडीज हम रख सकते हैं वो हो गया माइकोसिस फंगोइडीज, वेजिटोइड रेटिकुलोसिस, लिम्फोमेटोइड पेपिलोसिस, जिसमें हमने बोला था कि ग्रुप उसका जो सब ग्रुप बी था उसमें होता है, और क्यूटेनियस गेमा डेल्टा टी सेल लिम्फोमास, ठीक है। ये एपिडर्मोट्रोपिज्म के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रख सकते हैं। और जो ब्लास्ट सेल्स है वो हमारे पास लार्ज राउंड और ओवल न्यूक्लियाई विथ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियोलाई एंड बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म टाइप ऑफ सेल्स को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा हेमरेज in upper dermis can be seen, angiocentricity and invasion of the blood vessels can be seen. और हिस्टोपैथोलॉजिकली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम एमएफ, प्राइमरी क्यूटेनियस गेमा डेल्टा टी सेल लिम्फोमास, एंड इंडोलेंट CD8 पॉजिटिव क्यूटेनियस लिम्फोमास। इम्यूनोफिनोटाइप पे जो पॉजिटिव सेल्स है दे आर CD8, beta F1, CD45RA and CD3. These are positive cells. Or along with some cytotoxic proteins, which includes TIA1, granzymes B, and perforin. CD4, CD45 row, and CD56 plus CD30 are negative in this condition. There is no association with Epstein-Barr virus. क्लिनिकल फीचर में हमारे पास जो है वो rapidly develop generalized papules, plaques, nodules और ट्यूमर्स मिलेंगे। अल्सरेशन भी मिल सकती है along with necrosis, and mucosal involvement is also present. As the name suggests कि ये एक aggressive disease है, so the prognosis is very poor with 5-year survival rate of 18%. Treatment is the disease is aggressive, और जब अगर dissemination विजरल इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, और विजरा कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, CNS, टेस्टिस एंड लंग्स अलोंग विथ लिम्फ नोड्स, ठीक है। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो तो ये शो करता है पुअर प्रोग्नोसिस को। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम रिड्यूस्ड इंटेंसिटी एलोग्राफ प्रोसीजर्स रख सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा हमारे पास हर पेशेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्राइमरी क्यूटेनियस गेमा डेल्टा टी सेल लिम्फोमा. It shows a cytotoxic phenotype, and histopathology पे हमें prominent nodular और diffuse infiltrates मिलेंगे with medium to large pleomorphic और blast-like T cells, ठीक है। Epidermotropism is seen along with angiocentricity and rimming of the adipocytes, ठीक है। इम्यूनोफिनोटाइप पे हमारे पास जो पॉजिटिव सेल्स है वो है CD2, 3 and 56, और नेगेटिव सेल्स हमारे पास CD5, CD4, CD8, बीटा F1 होंगे। CD7 सेल्स ये पॉजिटिव भी होंगे और वो नेगेटिव भी होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में सडन अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल क्यूटेनियस प्लाक्स, नोड्यूल्स और ट्यूमर्स मिलेंगे along with ulceration, ठीक है। और mucosal and extranodal involvement can also be seen.
प्रोग्नोसिस इज पुअर। मैनेजमेंट में हम सुपरफिशियल रेडियोथेरेपी अलोंग विथ मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस्ड इंटेंसिटी एलोग्राफ्स भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी क्यूटेनियस CD4 पॉजिटिव स्मॉल मीडियम साइज प्लियोमॉर्फिक T cells. This must be distinguished clinically from mycosis fungoides, and this is derived from follicular helper T cells. Histopathology is same, जिसमें हमें dense nodular और diffuse infiltrates of small to medium sized pleomorphic cells मिलेंगे dermis में and subcutis में, along with large pleomorphic cells, and epidermotropism can also be seen. Immunophenotype CD4 and CD3 cells are positive, cd30, cd8 cells are negative, and cytotoxic proteins are also negative. Treatment option, अच्छा, clinical feature में we can see a solitary or few small plaques, nodules, or tumors on upper trunk, head and neck. 5-year survival rate is 62 to 80%, and obviously it has excellent prognosis. Management में हम superficial radiotherapy, surgical excision, single agent chemotherapy and interferon alpha दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है adult T cell leukemia lymphoma. This is caused by human retrovirus HTLV1, ठीक है। ये जो है एंडेमिक और स्पोरेडिक दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं, और इसकी लेटेंसी पीरियड इज लॉन्ग, about 15 to 20 years, or it can be transmitted in breast milk and blood products. There is slight male predominance with median age of 55 years. पीडियाट्रिक केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, और वो उन कंडीशंस में हुए जो पेरीनेटल इन्फेक्शन जिनमें हुआ हो, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेशन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं ये, स्पेशली दोज विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। पैथोफिजियोलॉजी में हमें अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो वायरस जो है वो जब ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, it incorporates into host genome, और फिर यही वायरस जो है वो टैक्स प्रोटीन रिलीज करता है, विच इज़ अ पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पाथवे, ठीक है। और मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन पाथवे जब स्टार्ट होता है, उसमें वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर देता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ यही याद रखने वाली बात। और जो वायरल आरएनए एक्सप्रेशन लेवल है, ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास काम आएगा, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में प्रोमिनेंट एपिडर्मोट्रोपिक इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ मीडियम टू लार्ज सेल्स मिलेंगे with pleomorphic nuclear morphology. इसमें हमारे पास ब्लास्ट लाइक सेल्स मिल सकते हैं with portrait like micro abscesses, cerebriform nuclear morphology भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा सेलुलर एटीपिया भी मिल सकती है, यूजिनोफिलिया, ग्रेनुलोमेटस फीचर्स भी मिल सकते हैं। और पेरिफेरल ब्लड में हम अगर देखें तो हमारे पास पॉलीलोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई और फ्लावर सेल्स मिलेंगे, ठीक है।
लिम्फ नोड्स पे हमारे पास ल्यूकेमिक पैटर्न ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, और हॉजकिन लाइक फीचर्स में हमारे पास एक्सपेंडेड लिम्फ नोड पैराकॉर्टेक्स मिल सकती है। इम्यूनोफिनोटाइप पे पॉजिटिव सेल्स हमारे पास CD2, CD3 एंड CD5 है, और नेगेटिव सेल्स CD7, CD4 एंड CD8 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और क्लोनल TCR जीन रीअरेंजमेंट्स भी मिल सकती है हमें। क्लिनिकल फीचर्स में एक्सटेंसिव लिम्फ नोड एंड पेरिफेरल ब्लड इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन 50% ऑफ केसेस जो है वो स्किन इन्वॉल्वमेंट भी होती है इसमें, ठीक है। और एक्स्ट्रा नोडल साइट्स अदर देन स्किन वो हमारे पास बोन, लंग, लिवर, GIT एंड CNS है। अब क्यूटेनियस फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमें वाइड स्प्रेड और सॉलिटरी पेप्यूल्स मिलेंगे, nodules, tumors, or some cases a patient may go into erythroderma with intense pruritus. ठीक है, अच्छा इसके जो 4 क्लिनिकल वेरिएंट्स है, ठीक है। एक एक्यूट वेरिएंट है जिसमें हमारे ल्यूकेमिक फेस को के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है, जिसमें जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट अलोंग विद हाइपरकैल्सीमिया एंड लिटिक बोन लीजन्स मिलेंगे। और इस वेरिएंट में जो एक्यूट वेरिएंट है इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होता है। जो दूसरा वेरिएंट है हमारे पास वो लिम्फोमेटस वेरिएंट है, जिसमें बाकी सारे ऊपर वाले फीचर्स होंगे लेकिन विद एब्सेंस ऑफ पेरिफेरल ब्लड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। थर्ड वेरिएंट इज क्रॉनिक वेरिएंट, जिसमें क्यूटेनियस डिजीज एंड पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइटोसिस मिलेगी विदाउट हाइपरकैल्सीमिया। और फोर्थ वेरिएंट इज स्मॉल्डरिंग वेरिएंट, जिसमें हमारे पास प्रोमिनेंट क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट विदाउट पेरिफेरल ब्लड इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें हमारे पास पल्मोनरी लीजन्स भी मिलेंगे। और progression from chronic and smoldering variant to acute disease occurs in at least 25% of cases, ठीक है। लेकिन ये आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ये प्रोग्रेशन हो सकती है। इन पेशेंट्स में मार्क फोटोसेंसिटिविटी भी मिल सकती है, ठीक है। जो HTLV1 इन्फेक्शन है, इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद अदर इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज सच एज डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा जो देयर आर सम अदर स्किन कंडीशंस which are associated with this HTLV1 infection. These include cirrhosis, acquired ichthyosis, seborrheic dermatitis, non-infectious dermatitis, along with some other infections like scabies and crusted scabies. Dermatophytosis, onychomycosis, bacterial skin infections like leprosy, ठीक है, warts, इन कंडीशन में there is association with HTLV1 infection. कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास opportunistic infections हो सकते हैं, और डिजीज प्रोग्नोसिस की बात करें तो एक्यूट और लिम्फोमेटस टाइप जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस शो करते हैं, ठीक है, विथ 10% 5-year सर्वाइवल। जो क्रॉनिक वेरिएंट है इट शोज 30% 5-year सर्वाइवल, और जो स्मॉल्डरिंग वेरिएंट है उसमें 5-year सर्वाइवल रेट जो है 65% है हमारे पास। इन्वेस्टिगेशन में हम फुल स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्लूडिंग PET एंड CT स्कैन, बोन मेरो ट्रिफाइन बायोप्सी एज वेल एज वायरल लोड, ठीक है। और इसके अलावा हम PCR भी कर सकते हैं पेशेंट का।
और हमें जो है हाइपरकैल्सीमिया भी मिल सकती है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, combination azacitidine along with interferon therapy और एंटी CCR4 थेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट में। लास्ट टॉपिक हमारे पास है एक्स्ट्रा नोडल नेचुरल किलर और टी सेल लिम्फोमास। ये जो है इस द नेम सजेस्ट एक्स्ट्रा नोडल मीन्स ये जो है लिम्फ नोड से बाहर होते हैं और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है नेजल कैविटी को, नेजोफेरिंग्स, पैरानेजल साइनसेस, ऑर्बिट्स, ओरोफेरिंग्स को, ठीक है। लेकिन इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। There is association with Epstein-Barr virus. Which present in a clonal episomal form. अच्छा, ये episomal form क्या है? मतलब episome जो है वो a piece of separate genetic material which does not integrate into the genome. मतलब जो सारा वायरस का जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा था वो सब कुछ इनकॉर्पोरेशन जो होती है उसमें एक छोटा पीस जो जेनेटिक मटेरियल का है वो सेपरेटली रह जाता है, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता इनटू द डीएनए, उसको हम जो है क्लोनल एपिसोमल फॉर्म कहते हैं। तो इस डिजीज में हमारे पास क्लोनल एपिसोमल फॉर्म ऑफ एप्स्टेन बार वायरस मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिलीशन ऑफ 6q एंड आइसोक्रोमोसोम 6q मिलेगी हमें। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें diffuse infiltrates in dermis and often subcutaneous मिल सकती है along with prominent angiocentricity and angiodestruction. Extensive necrosis मिलेगी, small, medium and large pleomorphic और anaplastic cells मिल सकते हैं हमें, heavy mixed inflammatory infiltrates along with pseudoepitheliomatous hyperplasia मिल सकती है। Immunophenotype में positive cells are cytoplasmic CD3, CD2 and CD56 and negative ones are surface CD3, ठीक है। clinical feature में हमें predominant involvement of nasal cavity, nasopharynx, paranasal sinuses, orbit and oropharynx होगी, along with tissue destruction which is termed as lethal midline granuloma. इसके अलावा हमारे पास स्किन जीआई की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। स्किन इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो क्यूटेनियस प्लाक्स, नोड्यूल्स और ट्यूमर्स मिल सकते हैं हमें, परप्यूरा, bullous lesions, cellulitis like rash and diffuse maculopapular rash भी मिल सकते हैं हमें। Hemophagocytic syndrome can develop rarely and systemic symptoms are common. Systemic symptoms में हमने fever, thrombocytopenia वगैरह पढ़ा था, ठीक है। बोन इसमें हमारे पास बोन मेरो एंड पेरिफेरल ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फिनोटाइप में मीडियन सर्वाइवल रेट हमारे पास 12 to 15 मंथ्स होंगे, लेकिन जिन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं विथ ओनली क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट दे शो 27 मंथ्स ऑफ मीडियन सर्वाइवल रेट, ठीक है। प्रोग्नोसिस इज पुअर एंड ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी वैसे पेशेंट को देंगे लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं एज द प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। सो here comes the end of our lecture and thank you for listening.